नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेता और पत्रकार विरूपक्ष गदगी और नगरसभा सदस्य शशि होसल्ली को धनराज हंगरगी की शिकायत पर गिरफ्तार। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। हर कोई अब हमारे देश के साथ मजबूत संबंध चाहता है, पीएम मोदी ने कहा। कर्नाटक केरल सीमा के आसपास नक्सली देखे जाने की आशंका के बीच तलाशी अभियान शुरू किया गया। इंडी गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने कहा, अरविंद को जेल में मारने की साजिश हो रही है। एनडीए के राज में रेल का सफर मजा नहीं है, सजा बन गया है। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के बसवेश्वर सर्कल में हुबली में छात्रा नेहा हिरेमठ हत्या की निंदा करते हुए हिंदू संगठन और छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता और पत्रकार विरूपक्ष गदगी और नगरसभा सदस्य शशि होसल्ली ने बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री परमेश्वर, नगरसभा प्रशासन मंत्री रहीम खान और सरकार के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया। इस पर आपत्ति जताते हुए धनराज कट्टेप्पा हंगरगी ने शिकायत करते हुए मांग की कि उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में धनराज ने शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही के तहत भाजपा नेता और पत्रकार विरूपक्ष गदगी और नगरसभा सदस्य शशि होसल्ली को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से दोनों नेताओं के समर्थक आदि पुलिस स्टेशन के पास जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। विशेष संवाददाता की ಬಾರಿ ಚಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂದಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಯಸ್ ಅಂತ ಯಾರೇ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಟ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೋಡು ಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಜರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ ತನಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಈಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ಇದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಈಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಬೀದರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನೆ ಹಿಜಡಾರ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಹಿಜಡ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಿರ್ತಾನ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಜಡ ಆಡಿದಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಇವತ್ತ ಕೇವಲ 24 ತಾಸಾಯ್ತು ಆ ನೇರ ಒಂದ್ ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಾಗ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅದ, ನೀ ಹಡ್ದಿನ ತಾಯಿ ಅದ, 9 ತಿಂಗಳು ಹಡ್ದ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮಗನೇ. ಇವತ್ತ ಏನಂತಿ ಲವ್ ಅದ ಅಂತಿ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಲವ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಲವ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ ಸಾಯವತ್ತಿ ಹುಳ ಬಿಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹುಳ ಬಿಸಾಯ್ತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬೀದರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಅವರು ಬಡವರು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಂದಂಗ ಯಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಓದಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಹುಷಾರ್ಲಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತ ಲವ್ ಅಂತಾರ, ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಚಾಕು ಹೊಡಿತಾರ. ಸಪೋಸ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರ ಫೀಸ್ ತುಂಬ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ. ಇವತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ರೆ ನೀ ಒಂದಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದೇನೋ ಪರಮೇಶ್ವರ, ನೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಿಕ್ಕೊಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1-2 ಮಾತು ಚಲೋ ಆಡ್ಲಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದು ಬೀದರ್ನಾಗ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೀದರ್ನಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವತ್ತ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ, ಶಾಹಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನವ 11 ಸಲ ಚಾಕು ಹೊಡೆದನವ. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸುಮ್ಮನ ಒಂದ್ ಇರೋ ಕಚ್ಚರಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ 11 ಸಲ ಚಾಕು ಹೊಡೆದ್ರು ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಕಿ. ಅದು ನಿಮ್ ತಲೆ ಚಂದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಡುಗರು ಮುಂದಿಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ ಯಾವ ಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪೈಲೆ ಗಾಡಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೈತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಹೊಡ್ಲತ್ರ ನಿಂದ್ರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಂಜಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಉಳಿತ್ರಿ ಬೀದರ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂಬ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ನೇಹಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕೊಲೆಯ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅವ ಯಾವನೇ ಇರ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೊಡಿರಿ. ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗ ಅವ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ನೋಡು. ಅವ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತಾರ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಾಕು ಹೊಡೆದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ 100 ಜನ ಇದ್ರು. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಭಯ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತ ಮುಟ್ಟೋರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, 5,000 10,000 ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ 100 ಜನ ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾರಣಿದ್ರು. ನೀವ್ ಯಾವತ್ತರ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ ತಗೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಯಾವತ್ತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರೇನಪ್ಪ? ಇದರ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ್ ಏನ್ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲಾಯಕನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಜರೂರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟ ಅದ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟ ಅದ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೆದ್ದಿರ್ತದ ಅದು ಗೆದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನ ಮೂರ್ಖನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಮೂರ್ಖ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ನಾವು. बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान को कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान खान ने सम्मान किया। आज शहर के बाहरी क्षेत्र बीदर एयरपोर्ट के समीप यह सम्मान किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के अन्य सदस्य आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, जनता महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस नेता डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने कहा कि उन्होंने रविवार को औराद कस्बे में घर घर जाकर गारंटी कार्ड वितरित कर यह बात कही। युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय नाम से 5 न्यायाधीशों की घोषणा की गई है। कांग्रेस पार्टी ने इन 5 जस्टिस से 25 गारंटी का वादा किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। जैसा कि राज्य में बताया गया था, हमने 98% लोगों के लिए गारंटी योजनाएं कवर की हैं। अगर हम केंद्र में भी सत्ता में आए तो देश की जनता को 5 गारंटी देंगे। उन्होंने शिकायत की कि भाजपा कीमतें बढ़ाने और महंगे कर लगाने के अलावा जन समर्थक योजना को लागू नहीं कर सकी। कांग्रेस सत्ता में आई तो 5 बड़े वादे पूरे किए जाएंगे। इस प्रकार डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने कांग्रेस का प्रचार किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में हर कोई अब भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहता है। उन्होंने कहा कि अब हम अनुयायी नहीं हैं, हम पहले प्रस्तावक बन गए हैं और उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 24/7 काम करने की कसम खाई है। बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश अपनी संघर्षशील अर्थव्यवस्था के कारण बुरी स्थिति में था। निवेशक तब आगे नहीं आएंगे, लेकिन अब वे अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। हम विश्व अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर थे, लेकिन अब हम शीर्ष 5 में हैं। उन्होंने दर्शकों से पूछा कि आपने ये बदलाव देखे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब उन्होंने मोदी मोदी का नारा लगाया तो उन्हें सुधारते हुए कहा,
यह आपके वोट के कारण हुआ। उन्होंने कहा, आपने एनडीए और इंडिया दोनों गुटों के अभियान देखे हैं। जहां विपक्षी गुट मोदी के खिलाफ आरोप लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं एनडीए भारत की वैश्विक छवि को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान विकास पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर है। इंडिया ब्लॉक प्रौद्योगिकी, आधार और जनधन खातों का विरोध करता है, यहां तक कि इसने कोविड वैक्सीन का भी विरोध किया। केरल की सीमा से लगे कर्नाटक के इलाकों में और उसके आसपास संदिग्ध नक्सली देखे जाने के बीच पुलिस ने पड़ोसी इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को कहा, कर्नाटक में आम चुनाव 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को 28 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होंगे। उडुपी के पुलिस अधीक्षक अरुण ने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक केरल सीमा और उसके आसपास संदिग्ध नक्सली देखे गए थे। हालांकि लगभग 5-6 साल पहले कर्नाटक के इस तरफ कोई नक्सली नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा, हमने नक्सल विरोधी बल के साथ समन्वय किया है और पड़ोसी इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है। हमने संबंधित जिले में नक्सल विरोधी दस्ते शुरू कर दिए हैं और किसी भी नक्सली गतिविधियों के बारे में स्थानीय जनता से जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु उत्तर क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे 1 या 2 बातें साबित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भाजपा यहां अपनी जीत का सिलसिला जारी रखे। बेंगलुरु उत्तर 2004 से भाजपा का गढ़ बना हुआ है और 57 वर्षीय व्यक्ति मोदी फैक्टर पर भरोसा कर रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व राज्यसभा सदस्य एमवी राजीव गौड़ा से है, जो जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों वोकलिंगा समुदाय से हैं। करंदलाजे उडुपी चिकमंगलुरु से 2 बार की सांसद हैं, लेकिन वहां अपनी पार्टी के एक वर्ग के शोभा वापस जाओ अभियान का सामना करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इंडी गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति को बहादुर बताया है। सुनीता ने कहा कि अरविंद बहुत बहादुर हैं और जेल में भी उन्हें देश की चिंता है। इस दौरान सुनीता ने जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुनीता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर मारने की साजिश हो रही है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस दौरान सुनीता ने यह भी कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। सुनीता ने ये बातें झारखंड की रांची में एक रैली के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कोई चाहत नहीं है, वह सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं, वह देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन छूटेंगे। सुनीता ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, उनके खाने पर कैमरा लगा हुआ है, हर निवाले पर नजर रखी जा रही है। वह शुगर के मरीज हैं और पिछले 12 साल से हर दिन 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। वे दिल्ली के सीएम को मारना चाहते हैं। वे अरविंद केजरीवाल के विचारों को नहीं समझ सकते। वह बहुत बहादुर हैं, वह शेर हैं, उन्हें जेल में भी भारत माता की चिंता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि केंद्र सरकार ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर रही है और सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। इस वजह से आम आदमी टॉयलेट में छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। इस वीडियो को एक लड़के ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में केरल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का हाल दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। सीट के अलावा फ्लोर पर भी हर जगह लोग बैठे हुए हैं। टॉयलेट के पास भी कई लोग बैठे और लेटे हुए हैं। एक युवक के पैर टॉयलेट के दरवाजे के अंदर भी हैं और वह सो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए राहुल ने लिखा है कि रेल सफर सजा बन गया है। सरकार जनरल डिब्बे हटाकर एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। इससे हर वर्ग परेशान है।
कंफर्ट टिकट लेने वाले भी अपनी सीट पर चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। आम आदमी जमीन और टॉयलेट में छिपकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापसी नहीं कर पाएगी। बसपा प्रमुख रविवार को अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और इनके अन्य सभी सहयोगी दलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन अधिकांश मामलों में गलत नीतियों के कारण उस केंद्र तथा राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। भाजपा पर कांग्रेस की राह पर चलने का आरोप लगाते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, पिछले कई वर्षों से भाजपा और उनके सहयोगी दल केंद्र तथा राज्यों की सत्ता में काबिज है, लेकिन इनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण नीतियों, कार्यप्रणाली और इनकी कथनी तथा करनी में अंतर होने के कारण लगता है कि इस बार भाजपा केंद्र की सत्ता में आसानी से वापसी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, बशर्ते अगर चुनाव इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई। मायावती ने कहा, वैसे भी इस बार चुनाव में बीजेपी पुरानी और नई नाटकबाजी, जुमलेबाजी, गारंटी आदि काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अभी चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनाव प्रचार में मंच से पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के भाजपा से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर विवादित बयान दिया है, जिससे प्रदेश में सियासत गर्मा सकती है। अनिल बोंडे ने कहा कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज अगर होते तो संजय राउत की जीत काट दी जाती और बाला साहेब ठाकरे होते तो वे संजय राउत के कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगाते। अमरावती लोकसभा सीट पर भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सांसद अनिल बोंडे ने ऐसी बातें कही। अनिल बोंडे ने कहा कि नवनीत राणा अमरावती सीट से चुनाव जीत रही है, इसलिए संजय राउत आए और उन्होंने हमारी माता बहनों को शर्मिंदा करने वाले बयान दिया। संजय राउत की इस गलती के लिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते तो संजय राउत की जीभ काट लेते कि नहीं। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो संजय राउत के कान के नीचे थप्पड़ मारते कि नहीं मारते। अब जो अपने आप को शिवसैनिक बोल रहे हैं, बोलो, अब यह बाला साहेब वाली शिवसेना नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कान के नीचे थप्पड़ मारने का दम नहीं है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पाकिस्तान में आज फिर से नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा है। इसमें 21 सीटें शामिल हैं, जहां पर उपचुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली की 21 सीट पर उपचुनाव के लिए रविवार को मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत के चुनिंदा जिलों में मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहा। मतदान की आधिकारिक समय अवधि खत्म होने के बाद उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जा रही है, जो समय समाप्ति के दौरान केंद्र में मौजूद है। नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय असेंबली के लिए पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुआ था। हालांकि नेशनल असेंबली की 1 सीट और पंजाब असेंबली की 2 तथा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 1 सीट के लिए मतदान रद्द कर दिया गया था। इनके अलावा 1 से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद केवल 1 सीट को ही चुना, जिसके कारण पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को 21 सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है। इनमें नेशनल असेंबली की 5 और प्रांतीय असेंबली की 16 सीट शामिल हैं। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर एक दिन पहले सरकार ने उपचुनाव के दौरान पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत के चुनिंदा जिलों में मोबाइल फोन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी।
मालदीव में संसदीय चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है। यह चुनाव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा है। मोहम्मद मोइजो का रुख भारत विरोधी रहा है। इससे पहले सितंबर 2023 में मोइजो के पीपीएम-पीएनसी गठबंधन ने इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव जीता था। मालदीव के संसदीय चुनाव में कुल 8 राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। इन राजनीतिक दलों ने 93 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 368 उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 2.8 लाख से ज्यादा मतदाता 602 मतदान केंद्र पर अपने वोट डाल रहे हैं। मोइजो के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। साथ ही उनके भारत विरोधी रुख को लेकर भी वोटर्स में नाराजगी है। मोइजो के आलोचक और चुनावी विश्लेषक उनकी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि संसदीय चुनाव में मुख्य विपक्षी दल और भारत समर्थक पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। अस्थायी परिणाम रविवार देर रात घोषित होने की संभावना थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेता और पत्रकार विरूपक्ष गदगी और नगरसभा सदस्य शशि होसल्ली को धनराज हंगरगी की शिकायत पर गिरफ्तार। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। हर कोई अब हमारे देश के साथ मजबूत संबंध चाहता है, पीएम मोदी ने कहा। कर्नाटक केरल सीमा के आसपास नक्सली देखे जाने की आशंका के बीच तलाशी अभियान शुरू किया गया। इंडी गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने कहा, अरविंद को जेल में मारने की साजिश हो रही है। एनडीए के राज में रेल का सफर मजा नहीं है, सजा बन गया है। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।